السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کریں گے سرخیوں سے۔ بابری مسجد کی شہادت کے 20 سال مکمل، شہر بھر میں احتجاجی بند پرامن۔ بابری مسجد شہادت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی لوک سبھا کے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے۔ ریاستی حکومت کی مخالف عوام پالیسیوں کے خلاف 8 دسمبر کو نظام کالج گراؤنڈ پر تلگو دیشم کا جلسہ۔ ریاست میں 9 دسمبر سے راجیو ودیا دیونا اسکیم کا آغاز۔ اور بنجارہ ہلز میں ایک ہی رات میں 2 موبائل شاپس میں چوری کے واقعات، 25 لاکھ روپے مالیتی موبائلز کا سرقہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ شہریان حیدرآباد نے 20 سال بعد بھی 6 دسمبر کو بند مناتے ہوئے حکومتوں کو پیام دیا ہے کہ انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کو فراموش نہیں کیا ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب مسجد کی شہادت کے ذمہ دار اپنے انجام بد کو پہنچیں گے۔ سٹی پولیس کے سخت انتظامات کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی جلسے بھی منعقد کیے گئے۔ بابری مسجد کی شہادت کے 20 سال مکمل ہونے پر مسلمانوں اور سیکولر شہریوں کی جانب سے شہر بھر میں بند منایا گیا۔ پرانے شہر میں بند مکمل دیکھا گیا اور نئے شہر میں بھی چند ایک علاقوں کو چھوڑ کر مکمل بند منایا گیا۔ اور شہریان حیدرآباد نے پرامن بند مناتے ہوئے مسجد کی شہادت پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سٹی پولیس کی جانب سے غیر معمولی بندوبست دیکھا گیا۔ کمشنر سٹی پولیس سارے انتظامات کی راست نگرانی کر رہے تھے۔ چار مینار پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اور ایڈیشنل ڈی سی پی ٹریفک کو چوکس دیکھا گیا۔ سارے چار مینار کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ سعید آباد میں بھی پولیس کی غیر معمولی جمعیت دیکھی گئی۔ کمشنر پولیس نے عوام کا شکریہ ادا کیا اور توقع ظاہر کی کہ 2 تا 3 روز میں کشیدگی کا یہ ماحول بالکل ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے یہاں پر شہر میں امن و سکون بنا رہے، اس کے لیے پختہ انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے سارے افسران، پوری فورس اور ہمارے جتنے بھی سینئر آفیسرز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں بندوبست میں ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ پبلک نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور شہر کے اندر کسی طرح کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کے ذریعے پبلک سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، جس سے کہ یہ ٹائم جو ہے بالکل امن و سکون کے ساتھ نکل جائے اور کسی کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، اور کل سے واپس ہمارا شہر پرانے جو نارملسی کے حالات ہیں اس کے اندر آ جائے، اور ہر آدمی کو اپنا اپنا کام کرنے کی، اپنے اپنے روزی روٹی دیکھنے کی پوری طرح سے سہولیت رہے۔ پولیس کی غیر معمولی سختیوں کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں مذہبی جماعتوں و تنظیموں کی جانب سے مختلف احتجاجی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ مدینہ کالونی فلک نما میں بابری مسجد کی بازیابی اور مسجد کی شہادت کے بعد احتجاج کے دوران شہید ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے محفل قرآن خوانی منعقد کی گئی۔ اس منفرد پروگرام میں کمسن بچیوں نے قرآن خوانی کی اور مسجد کی تعمیر کے لیے دعا کی۔ مجلسی رکن بلدیہ وجاہت علی خان اس محفل میں شریک تھے۔ ڈی جے ایس نامی تنظیم کی جانب سے مغل پورے میں احتجاج کیا گیا۔ تنظیم کے ذمہ داروں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے بعد
तराजू नजर आतिश किया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए मुंतकिल कर दिया। सईदाबाद में तंजीम वहदत इस्लामी की जानिब से मस्जिद उजाले शाह में एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया। मुत्तहिदा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की जानिब से ख्वाजा मिंशन मासाब टैंक में एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें मस्जिद की शहादत के लिए उस वक्त की हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया गया और मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा करते हुए एक करारदाद भी मंजूर की गई। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बंद को कामयाब करने पर मुसलमानों और सेक्युलर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मजलिस मस्जिद का मुकदमा लड़ने वालों के साथ है और मस्जिद की तामीर तक उसकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुत्तहिदा मजलिस अमल की अपील पर आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 20 साल के बरसी के मौके पर पुरअमन तौर पर बंद मनाने की अपील की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही कामयाब और पुरअमन बंद मनाया गया। इस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों को और सेकुलर जहन रखकर इस बंद में हिस्सा लेने वाले तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलसिल उसकी बाजियाबी की कोशिशें दुआओं के ज़रिए जारी रखी हुई है और अदालत में भी ये मसला ज़ेर दौरा है। अपनी दुआओं में हमेशा बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला मस्जिद के हक़ में हो और मुसलमानों के लिए दोबारा वहाँ पर मस्जिद तामीर हो, वहाँ से नमाज़ों का आगाज़ हो। बाबरी मस्जिद शहादत के ज़िम्मेदार मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा की कार्रवाई रोक दी। जुमेरात को लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर बाबरी मस्जिद की शहादत के कसूर वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बैरिस्टर ओवैसी के हमराह बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क भी ऐवान के वस्त में पहुंच गए। बीएसपी रुकन के हाथ में सियाह झंडा भी था, जिस पर स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने कहा कि सियाह झंडा लेकर ऐवान में दाखिल होना ऐवान की तौहीन है। स्पीकर ने उन्हें सियाह झंडा रख देने की हिदायत दी। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी जब ऐवान के वस्त में एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त शिवसेना और बीजेपी के अरकान मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी और शिवसेना बीजेपी अरकान के दरमियान बहस व तकरार हुई। बैरिस्टर ओवैसी के मुसलसल एहतजाज के बाद स्पीकर मीरा कुमार ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। इजलास जब 12 बजे के बाद दोबारा शुरू हुआ तो बैरिस्टर ओवैसी का एहतजाज जारी रहा। इस मौके पर सीपीएम के बासुदेव आचार्य और डीएमके के टीआर बालू ने हुकूमत से बैरिस्टर ओवैसी के मुतालबे पर वजाहत करने का मुतालबा किया, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बैरिस्टर ओवैसी के मुसलसल एहतजाज को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। 2 बजे जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो बैरिस्टर ओवैसी फिर ऐवान के वस्त में पहुंच गए और बाबरी मस्जिद शहादत के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने लगे। इस मुसलसल एहतजाज को देखते हुए डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ब्लड प्रेशर, कैंसर, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज की जांच के लिए रियासत में 100 मराकज़ कायम किए जाएंगे। WHO इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये अमराज इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह बनते जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि हिंदुस्तान में उस वक्त 10 करोड़ अफराद अस्थमा का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इन अमराज से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद का हैदराबाद पहुँचने पर कांग्रेसी कायदीन ने इस्तकबाल किया। 1 जनवरी से रियासती सरकारी मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। चीफ सेक्रेटरी मिनी मैथ्यू के साथ मुलाजिमीन के नुमाइंदों का जुमेरात को इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि आरोग्य ट्रस्ट के तहत पहले 6 माह के लिए नॉन गेजिटेड मुलाजिमीन को बीमा के लिए 90 रुपये और गेजिटेड मुलाजिमीन को 120 रुपये अदा किए जाएंगे। इस स्कीम पर 1 जनवरी से अमल होगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में 9 दिसंबर से राजीव विद्या दीवना स्कीम शुरू की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस स्कीम के ज़रिए 9वीं और 10वीं जमात के SC, ST, BC और अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी।
एक वजीर ने गैर रस्मी तौर पर बताया कि 9 दिसंबर से मेस चार्जेस में इजाफे के ऐलान के बाद हॉस्टल में फराहम की जाने वाली ग़िज़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में भी जायज़ा लिया गया है। इजलास में वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात, वज़ीर समाजी बहबूद, वज़ीर अक़लियती बहबूद और वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल ने शिरकत की। रियासती वज़ीर पी लक्ष्मैया ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मसले तेलंगाना पर कुल जमात इजलास तलब किए जाने का खैर मक़दम किया है। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए पी लक्ष्मैया ने कहा कि कुल जमात इजलास तश्कील तेलंगाना की समत पहला कदम होगा। उन्होंने बताया कि जुमेरात को त्रिपुरा के वज़ीर IT ने उनसे मुलाकात करते हुए मी सेवा खिदमात की सताइश की और त्रिपुरा में भी इस तरह की खिदमत शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया। रियासती वज़ीर ने बताया कि रियासत में 10,367 मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें से 18,000 अफराद को रोज़गार हासिल हुआ है। సుశీల్ కుమార్ సింధు గారి నిన్నటి ప్రకటన అఖిలపక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటిది 60 సంవత్సరాల పైచిలకు తెలంగాణ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ గత ప్రకటనలకు నిర్ణయానికి ఈ సమావేశంగా నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా ఉండాలని కోరుకోవడం। रुकन असम्बली के लक्ष्मण रेड्डी ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कुल जमात इजलास तलब किए जाने के फैसले का खैर मक़दम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास में किसी भी जमात से चाहे कितने ही नुमाइंदे शिरकत करें, लेकिन इस मसले का हल अब निकल आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को मुत्तहिदा तौर पर फैसला लेना होगा। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायणा ने कहा है कि मरकज़ एक बार फिर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने 4TV से बात करते हुए कहा कि कुल जमाती इजलास से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक बजट इजलास में बिल पेश नहीं किया जाता, मसले तेलंगाना की यकसुई नहीं हो सकती। सेशन जारी रहना है और कई मसले जनता के आज सेशन में चर्चा करना और उसका हल निकालने का फर्ज इधर सरकार की है। वो सरकार पे दबाव लाने का जो हमारा विपक्ष के नाते हमारा जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए हम तैयार हैं। इधर जो गृह मंत्री जी जो कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधि है, 28 तारीख का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की जो ऐलान करे है, वो पिछला जो किस्सा है, हिस्सा है, कई बार पब्लिक को धोखा दिए सो कांग्रेस का जो हिस्ट्री है। टीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की एजाजी सदर विजय लक्ष्मी से मुतालबा किया है कि वो मसले तेलंगाना पर तलब किए गए इजलास में शिरकत करते हुए अलहदा तेलंगाना की हिमायत करें। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि पदयात्राएं करने वाले कायदीन को कुल जमात इजलास से पहले अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विजय लक्ष्मी ने कुल जमात इजलास में अलहदा तेलंगाना की हिमायत नहीं की तो तेलंगाना के अवाम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। రకరకాల ముసుగులతో ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నాయి కాంగ్రెస్, టీడీపీ, వైఎస్ఆర్సీపీలు. ఇలా మీ ఇద్దరు సంగతి చేయాలి. నిన్నటిదాకా మీరు పార్లమెంట్లో నిన్నటిదాకా ఏం చెప్పిండు? అఖిల పక్షం పిలవండి, మేము రెడీ అన్నారు. మరి పిలవగానే మళ్ళీ మాటలు మారుతున్నాయి. చెప్పాల్సింది కొండా దంపతులు కాదు, వైఎస్ విజయమ్మ స్వయంగా అఖిల పక్షానికి హాజరై తెలంగాణకు అనుకూలమని చెప్తేనే ఆ పార్టీకి తెలంగాణలో స్థానం ఉంటుంది.